Assalamu alaikum students. Today we are going to start our new topic in medicinal chemistry. Uh, Before starting the topic, first of all, I would like to give you a brief overview of this topic. The topic is based on stereochemistry and the drug action. This topic is basically divided into two portions. First, we will discuss the stereochemistry, the role of stereochemistry. Then we go for the drug in action, action of the drug with respect to the different mechanism or theories related to the drug receptor interaction. So, as the word stereochemistry explains that it is the study of three-dimensional arrangements of atoms of molecules in the space. So the arrangement of all atoms in 3D space or XYZ coordinates they will give you different shape of the molecules. So the reference book which we will follow in this lecture, which I have already uh, posted on the classroom, which is based on Essential of Pharmaceutical Chemistry by Don Kans, and we'll cover the topic with another book which is Organic Chemistry by R.D. Brown. So the outline of the topic is based on introduction of the stereochemistry. First, we'll see the basic terminologies or the classification of stereochemistry, the types related to the stereochemistry, and after that we'll see the different rules which are dominating to explain the concept of stereochemistry, in which is very important with respect to the classification of stereochemistry and to differentiate the different types of stereochemistry. We'll see the isomers, what are isomers, stereoisomers, chirality, achirality, stereocenter, symmetry, point of symmetry, enantiomers, distomers, mesomers, ectomers, distomers, and the iridesmic ratio. So we'll see all these terminologies. Uh, all these terminologies will come under the phenomena of stereochemistry. They are also classified as a configurational isomers. We'll see in the classification, then we'll discuss about the geometric isomerism and the conformational isomerism, conformational isomers, and the rules or the sentence which explains the uh, presentation of the molecule in 3D space. There are different way to depict or represent the shape of molecule or structure of the molecule in 3D space, which we'll discuss with respect to the Fischer projection, Newman projection, and the Sawhorst type of 3D uh, shape of the molecule. Then we will discuss about the nomenclatures of the stereochemistry or stereoisomers or different types of isomers, which will be based on R and S system, Z and E, cis Z and trans Z system, and the DL orientation and the plus minus optical activity of the molecule. We'll discuss this D and L with respect to the optical activity. This D and L, there is a difference between capital D, capital N, with the small d and small l. So both are different things we'll discuss. So the objective of this topic, which we will cover in the upcoming lectures, you will be able to differentiate between the types of isomers, stereoisomers. You will be able to explain the role and application of stereochemistry in medicinal chemistry. Can easily exemplify and correlate the importance of different isomers or different types of stereoisomers in drug discovery and designing point of view, and you can easily interpret the isomers or different types of isomers which is based on stereochemistry. So the structures of the drugs or the examples related to the different D and L or R and S and E and Z system type will be easily differentiated on the basis of the rules which we'll discuss in the coming lectures. So first, I will give you the brief layout of this stereochemistry. As the stereochemistry, I'm not right now. I'm not telling you the stereochemistry. Uh, the the overall topic stereochemistry or the field of stereochemistry is basically based on a study of the stereoisomers. So we'll discuss the stereoisomers, and stereoisomers has two subtypes. Number one is the
configuration, configuration, configurational कहते हैं इसको हम. Second one is based on conformation, conformation isomers. Okay, these configuration isomers are non-interconvertible and they are and they are easily isolatable. So they are not interconverted to each other, but they can easily isolate. They are isolatable. While on the other hand, conformation or conformational isomers are interconvertible. They can interchange and they are non-isolatable. Okay. There are further classification of configuration isomers. This configuration isomer is also known as structural isomers. Structural isomers भी कहते हैं. ठीक है. कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स की दो टाइप्स हैं. एक हमारे पास है एनेंटियोमर्स और सेकंड वन हमारे पास है इसमें डायस्ट्रियोमर्स. ओके. इसके अलावा भी इसमें एक और टाइप क्लास है वो मीजोमर्स के नाम से. मीजोमर्स is different, which is different from both the enantiomers and the diastereomers. This enantiomers are optically classified on the basis of R and S system type. Okay, we will discuss. And the diastereomers are further classified as optical and the geometric isomers. In geometric isomers, we have a different naming, which is based on E and Z type of classification, which we will discuss. So overall, this is the classification of stereoisomers, which is broadly classified in the field of stereochemistry. So first of all, what is stereochemistry? And before uh, uh, starting the further, we must know about what is stereochemistry. As the word stereo explains that it is the base, it is the knowledge of the structural features in 3D space. So the arrangement of atoms in 3D space, okay, or the study of arrangement of atoms in the 3D space, or the study of arrangement of atoms in a molecule in 3D space, or orientation of different groups or atoms which is a part of a drug in 3D space. So simply you can say that the study of molecules in 3D space is known as the stereochemistry, or the ability to visualize the uh, um, chemical or stereochemical relationship of the structural features of the drug in 3D space. If you simply take that the example of starch and cellulose, the both these are the polymers. Starch and cellulose both are polymers. They belong to the family of bimolecules or carbohydrates. They are composed of repeating units of the sugar, or they are the repeating unit of the polymers, which is composed of different types of the carbohydrate, monosaccharide, disaccharide. As the repeating unit of the carbohydrate, they are interconnected to each other and they are classified into two different types. So starch and cellulose both have a same repeating units interconnected with each other, but they have different arrangement in 3D space. uh,
as starch and cellulose are isomers. They have a same molecular formula, but they have different structural arrangement. So here, another terminology which is isomers. We will use the word isomers most of the time with respect to different types of the stereochemistry, like enantiomers, diastereomers, mesomers. So they are classified as isomeric types or isomers. So isomorphs भी कहलाएंगे ये. तो अगर हम इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझ रहे हैं, आसान एग्जांपल हमारे पास है, सिंपली एक स्टार्च का मॉलिक्यूल है आपके पास, एक आपके पास सेलुलोज का मॉलिक्यूल है. दोनों के दोनों जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट फैमिली से बिलोंग करते हैं. दोनों के अंदर जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं वो सेम है. Point of difference is that they are different. They both have different name, but they have same molecular formula. But the only difference is the arrangement of the atoms in the 3D space. If we look at the connecting bridge of this repeating unit of the sugar molecule, these are the sugar units. These are the units. I'm not talking about the type of the sugar कि maltose है या lactose है या glucose है या fructose है. I'm not talking about that. Just the just to keep it simple and to make it understandable कि ये repeating units इनका जो molecular formula है वो दोनों के अंदर starch और cellulose दोनों के अंदर same है. यहाँ पर भी same है, यहाँ पर भी same है. The difference that कि ये पिंक कलर के अंदर और ये जो पर्पल कलर के अंदर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बता रहा है, दैट इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इन द 3D स्पेस. 3D स्पेस के अंदर जो इसकी कनेक्टिंग ब्रिज है जिसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं, इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज which connects the two sugar molecule to each other, there is arrangement of this glycosidic linkage in the 3D space. If we see the glycosidic linkage of a simple starch molecule, the repeating unit of the sugars, they are interconnected with the help of O glycosidic linkage, and their O is at the equator. Okay, their O is at the एक्सियल, सॉरी, ये इसका ओ जो है आपके पास 3D स्पेस के अंदर ये जो लिंकेज है ये एक्सियल कहलाएगा. ठीक है, जस्ट एक्सियल मीन्स जस्ट लाइक दैट, इसको हम एक्सियल कहते हैं, लाइक अ 90 डिग्री. सिमिलरली इसी तरीके से आपके पास सेलुलोज की अगर हम देखें, जो आपके पास इंटरकनेक्टेड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है विच इज़ एट इक्वेटर, इसको हम इक्वेटोरियल कहते हैं. So that is the difference in the arrangement of the glycosidic linkage which differentiate the cellulose from the starch. दोनों के अंदर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, रिपीटिंग यूनिट सेम है, पर जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है उसकी जो अरेंजमेंट है 3D स्पेस के अंदर, एक के अंदर आपके पास एक एक्सियल ओरिएंटेशन है, दूसरे के अंदर आपके पास इक्वेटोरियल ओरिएंटेशन है. So this is the difference between the starch and the cellulose molecule that explains the stereochemistry of the starch and the cellulose molecule. Axial means just like 90 degree, ये axial कहलाएगा, और equatorial means just like on the equator. ठीक है, तो अगर हम बात करें इसी तरीके से हमारे पास हम देखें तो आइसोमर्स, आपके पास एक टर्मिनोलॉजी है. आइसोमर्स are those compounds, they are this belongs to the field of stereochemistry. Isomers means the compounds have or different compounds or drugs or molecules or structure of the drug have same molecular formula, but the difference is the arrangement of atom. They have same molecular formula, but 3D अरेंजमेंट जो है आपके पास, 3D अरेंजमेंट है, 3 डायमेंशनल, यानी कि स्पेस के अंदर जो ओरिएंटेशन है 3D ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिफरेंट. ठीक है, बट डिफर इन 3D orientation or 3D arrangement of the atoms or group of atoms in the structure of a molecule. So the isomers have same molecular formula and the difference, but they are different in the arrangement of 3D, a three-dimensional arrangement of the atoms. Isomers are also known as constitutional isomers or structural isomers. They have same molecular formula, but they have different in connectivity of atoms within the molecule. अगर हम इसको मिसाल के तौर पर हम समझें तो हमारे पास एक सिंपल, अगर हम एक मॉलिक्यूल का नाम लें C4H10 हमारे पास है, तो एक सिंपल मॉलिकुलर फॉर्मूला किसी भी
किसी भी अगर हम इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को किसी भी स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें तो इससे मल्टीपल स्ट्रक्चरल फॉर्म आपके पास फॉर्मुलेट हो सकते हैं। लेट्स सपोज C4H10 को हम एन ब्यूटेन की फॉर्म के अंदर लिखें तो यहाँ पे आपके 4 आपके पास कार्बन है, ठीक है, और 10 हाइड्रोजन आपके पास। इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर मैं इसको ब्रांच फॉर्म के अंदर लिख दूँ तो आपके पास एक शक्ल ये भी बन गई, यानी कि स्ट्रेट चेन आपके पास। तो ये आपके पास 1 2 3 4 4 कार्बन है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ तब भी आपके पास एक शक्ल बन गई, 1 2 3 4 4 कार्बन। स्ट्रेट चेन हो या ब्रांच चेन हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को हम किसी भी स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसके जो एटम्स होंगे, इंटरकनेक्टिविटी जो होगी, दैट कैन बी डिफरेंशिएट। तो ऑल दिस मॉलिक्यूल एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, स्ट्रेट चेन हो या ब्रांच चेन, हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट द डिफरेंस इज द अरेंजमेंट और द कनेक्टिविटी ऑफ द एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। सिमिलरली अगर आप इस दो एग्जांपल्स को कंपेयर करें, फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल, इस फर्स्ट एग्जांपल के अंदर आपके पास C5H12 है, सेकंड फाइव के अंदर सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर भी आपके पास C5H12 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास MF मींस मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। नाम क्या है, दोनों का फ़र्क है, एक का नाम पेंटेन है, एक का नाम आपके पास 2 मिथाइल ब्यूटेन है। क्यों? इसमें आपके पास सिंपल स्ट्रेट चेन है, 5 कार्बन से 12 हाइड्रोजन है। अगर मैं एक ब्रांच ऐड कर दूं तो एक मिथाइल ब्रांचिंग आगे किसी भी ब्रांच को मैं 2 पे भी कर सकता हूँ, 3 पे भी कर सकता हूँ, तो उसका नाम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ड्यू टू द चेंज इन द connection of the atoms within the structure, it gives you another chemistry, another shape of the molecule. But the main thing is that their molecular formula is same, but the difference is the arrangement of the structure, the arrangement of the atoms or group of atoms in the 3D space, which differs between the same molecular formula. Okay, another example आपके पास है 1 पेंटीन। इन मतलब एक डबल बॉन्ड है, तो C5H10 है। इस तरीके से साइक्लोपेंटीन C5H10 है। दोनों के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन फ़र्क है, दोनों के अंदर अरेंजमेंट है, बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट है। तो आपके पास ना सिर्फ कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग का भी डिफरेंस आ सकता है सिंगल और डबल बॉन्ड का, ठीक है। So you can say that isomers are those compounds which have same molecular formula but they differ in 3D orientation. They are also classified as constitutional isomers or structural isomers. They have different IUPAC name. They have different IUPAC name. जैसा कि हमने देखा isobutane, N-butane, pentane, ठीक है। They have same or different functional group, ठीक है, just like 1 pentene and cyclopentene, ठीक है। इसी तरीके से दे हैव isomers have different melting point and boiling point. They have different physical and chemical properties. ठीक, अगर इसकी मैं एक और एग्जांपल दूँ इसी स्लाइड के ऊपर, तो एक स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से ही बना सकते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास CH3 C डबल सॉरी CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपके पास, दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O। ये मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अगर दोनों मॉलिक्यूल्स से कंपेयर करें तो दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पर आपके पास एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक है। यहाँ पे आपके पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखूँ तो दोनों का इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, 3 कार्बन है C3, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन है और ओनली सिंगल ऑक्सीजन। इसी तरीके से इसका देखूँ मैं, 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और सिंगल ऑक्सीजन है। they both have same molecular formula, but they differ in the arrangement of atoms. They have different functional group, एक में एल्डिहाइडिक है, एक में आपके पास कीटोन है। तो आप इस तरह से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है।
So, what is stereoisomers? What are stereoisomers? So, stereoisomers are molecules that contain the same number and kinds of atoms, the same arrangement of bonds, but differ in the 3D dimensional structure. In other words, you can see that they have only difference in the arrangement of atoms in the space. Space means 3D space के अंदर इसकी orientation जो होगी, arrangement जो होगी, it may differ. ठीक है, यानी कि इसको मैं मिसाल के तौर पर समझाऊँ, आपके पास एक ये क्या, आपके पास 4 कार्बन साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है, इसको मैं इस तरह से बना सकता हूँ। साइक्लोब्यूटेन के ऊपर एक मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। इस तरीके से एक और साइक्लोब्यूटेन है, इसमें एक में मिथाइल ग्रुप इस तरह से लगा हुआ है और एक में मिथाइल ग्रुप इस तरह से लगा हुआ है डॉटेड लाइन से। ये क्या इंडिकेट करता है? ये सॉलिड वैश लाइन जो होती है, सॉलिड वैश लाइन, दैट इंडिकेट्स दैट द group which is attached to the structure, it is towards the observer. So both the CH3 in the structure cyclobutane are towards the observer, but in the another form of this same molecule, the methyl group, one of the methyl group, it is towards, and one of the methyl group is away. Okay, so that dotted line explains that this methyl group is away from the observer. So both these structure have same molecular formula, but in 3D space they have different orientation of methyl group. In one structure, structure number 1, both the methyl is towards the observer. In structure number 2, one of the methyl is towards the observer and the another methyl group, it is away from the observer. So the arrangement of atoms in 3D space are different in both the molecules, but they have same molecular formulas. This is the structural concept, or this is the basics of stereoisomer stereochemistry. So they are classified as a stereoisomers. Both the molecules are stereoisomers. They have same molecular formula, they have same bonding, the same arrangement, but uh, they have same arrangement of bond, but the orientation of the groups which attach on the structure in the 3D space is differ. The only difference the differentiating the attachment of the group in the 3D space. इसको समझने के लिए एक और चीज़ भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं, एक और कॉन्सेप्ट भी, कि पहले इस चीज़ को मुकम्मल कर लें कि स्टीरियोआइसोमर्स में ये यहाँ तक तो समझ में आ गया। स्टीरियोआइसोमर्स में दे हैव सेम आईयूपीएसी नेम, दे हैव सेम आईयूपैक नेम, ठीक है, बट हाउ कैन वी डिफरेंशिएट? we can differentiate the stereoisomers on the basis of using E and Z type of naming. हम nomenclature जब इसके देखेंगे stereochemistry के अंदर, we can differentiate the structures of same molecular formula, same IUPAC name, but we can differentiate on the basis of arrangement of groups in 3D space. E और Z, cis Z कहते हैं और trans E कहते हैं। ये prefix की basis पे हम इन isomers को isolate कर सकते हैं और differentiate कर सकते हैं, ठीक है। They have a same physical properties, they have a same functional group, so they have same IUPAC name, same physical property, they have same functional group, okay. So इसको फर्दर अगर इसको एलेबरेट किया जाए, ये स्टीरियो आइसोमर्स किस बेसिस पे हम कहते हैं कि ड्रग के अंदर स्टीरियो आइसोमर्स, इसके स्टीरियो आइसोमर्स जनरेट हो सकते हैं, इसको फर्दर डिटेल में जाने से पहले और टाइप्स को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और हम समझ लें इसके अंदर, कि दे आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, और ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट बेसिक टर्मिनोलॉजीज विच वी कैन डिफरेंशिएट, और वी कैन से दैट दिस स्ट्रक्चर हैव two isomers, four isomers. They are possible isomer. The possible isomer of the structure one is four isomer. So they, which depends upon the nature of the carbon. So there must be a concept which in different, which may classify stereochemistry as stereoisomers or to produce different type of isomers. ये आप सबसे आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर या आइसोमर्स के टाइप्स के अंदर। हम इसको रिव्यू कर लेते हैं को जल्दी से, कि देयर इज अ वर्ड विच इज़ यूज विच इज़ कायरल सेंटर। अगर हम देखें कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं,
ठीक है, वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 अटैचमेंट है, यानी 4 हाथ हैं। तो टेट्राहेड्रल एटम कहलाएगा ये। सो अगर ये चारों के चारों हैंड जो है डिफरेंट होंगे, अगर एक हैंड पे ए कनेक्ट हो, बी हो, सी हो, डी, यानी कि चारों के चारों अटैचमेंट डिफरेंट हैं, इसको हम डिफरेंट अटैचमेंट को ए बी सी डी से इंडिकेट करते हैं। तो दैट इंडिकेट दैट दिस कार्बन इज कायरल कार्बन, इसको हम स्टेरिक से मार्क कर देते हैं। दैट स्टेरिक इंडिकेट दैट इट इज कायरल कार्बन। कायरल कार्बन मीन्स कि किसी भी स्ट्रक्चर को, और आप देखें कोई भी स्ट्रक्चर लें ड्रग का, अगर उसके कार्बन की जो 4 वैलेंसी है 4 डिफरेंट एटम से अटैच है, जो बॉन्डिंग है, तो दैट कार्बन विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टीरियो कार्बन। ये कार्बन जो आपके पास स्टीरियो कार्बन कहलाएगा, या इसको हम कायरल कार्बन भी कहते हैं, स्टीरियो कार्बन भी कहते हैं और कायरल कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, कायरल मीन्स इसमें 4 डिफरेंट अटैचमेंट हो गई। So a tetrahedral atom most commonly carbon is that is bonded to 4 different groups। ठीक है, ठीक है। अगर इसके अंदर इसी कार्बन को मैं एक कार्बन से रिप्रेजेंट कर दूं यहीं पे, तो अगर इस कार्बन पे कोई भी 2 ग्रुप सेम हो गए, ए बी सी, तो ये कार्बन आपका कायरल कार्बन नहीं होगा। ये कायरल आपका कार्बन नहीं होगा, ये आपका कायरल होगा, ये आपका कायरल कार्बन नहीं होगा। तो कार्बन की कोई सी भी 2 अटैचमेंट अगर सेम हो गई, तो वो कार्बन आपके पास स्टीरियो कार्बन या कायरल कार्बन नहीं कहलाएगा, वो ई कायरल कार्बन कहलाएगा। ठीक है, एक अलग हम देख लेंगे। इसी तरीके से एक और टर्मिनोलॉजी स्टीरियो सेंटर। अच्छा, स्टीरियो सेंटर मीन्स एन एटम अबाउट विच एक्सचेंज ऑफ 2 ग्रुप प्रोड्यूस अ स्टीरियोआइसोमर। कायरल सेंटर्स आर वन टाइप ऑफ स्टीरियो सेंटर, यानी कि यही स्टीरियो सेंटर जो आपके पास जो है वो कायरल सेंटर को भी डिपेंड कर रहा है। यानी कायरल कार्बन को आप स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं। एक से ज़्यादा भी आपके पास स्टीरियो सेंटर हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक और रूल है आपके पास, इसको हम कहते हैं वेंट हॉफ्स रूल। वेंट हॉफ्स rule, which is used to identify the possible isomers, possible isomers of a molecule। ठीक है, रिपीट करता हूँ मैं। देयर इज अ रूल विच इज बेसिकली यूज टू इंडिकेट और आइडेंटिफाई the number of isomers, number of possible isomers of a molecule। This rule is basically works on the basis of stereocenter। stereocenter हो या कोई कायरल कार्बन हो उसके अंदर, देयर मस्ट बी अ कायरलिटी, कायरल कार्बन हो, देयर मस्ट बी कायरलिटी in the structure of a molecule। ठीक है, if this is present in the structure that indicates the number of possible isomers। ठीक है, the rule is basically used, there's an equation for this rule which is based on 2 the power n। ठीक है, n is number of possible isomers, sorry, n is number of लगेगा कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। ठीक है, एंड बेसिकली इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कायरल कार्बन या नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स। जैसा कि मैंने कहा कि एक इस मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर्स भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा स्टीरियो कायरल कार्बन भी हो सकते हैं। तो एन बेसिकली इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कायरलिटी और नंबर ऑफ कायरल कार्बन और नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। ठीक है, अगर लेट सपोज एन की वैल्यू 1 है, तो 2 की पावर एन क्या होगी 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 indicates 2, that 2 is the possible isomers। ये 2 पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं। अगर एक कायरल कार्बन किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है तो उसके 2 पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं। ठीक है, अगर n की वैल्यू आपके पास 2 है, अगर n की वैल्यू आपके पास 2 है, आपके पास क्या होगा 2 की पावर 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 पॉसिबल आइसोमर्स होंगे। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू 3 हुई, 3 स्टीरियो सेंटर हुए, 3 कायरल कार्बन हो, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 पॉसिबल आइसोमर्स होंगे।
So N basically indicates the number of chiral carbon or number of stereocenter. If there are more than one stereocenter, that can be used as Venn Hoff rule, and in order to predict the number of possible isomers. तो possible isomers आपके पास अगर स्ट्रक्चर के अंदर तीन कार्बन या तीन स्टीरियो मौजूद हैं तो उसके अंदर 8 पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं. You can easily make the number of isomers of a single structure molecule. That basically depends upon the chirality, stereocenter or chiral carbon to the molecule. ओके. तो कायरलिटी होती क्या है, इसको हम और आसान लफ्ज़ों में समझ लें. कायरलिटी क्या कहलाती है, बेसिकली कायरलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है. वो द वर्ड कायरलिटी बेसिकली एक्सप्लेन्स दैट. अगर आप सिंपल आसान एग्जांपल लें तो आपके हाथ एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है. ठीक है. अगर आपने राइट हैंड को देखें और लेफ्ट हैंड दोनों को देखें, दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. ठीक है, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है. ठीक है. आपके दोनों पाम जो है, ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों के पाम फेस कर रहे हैं दूसरे को. ये थंब आपका इसको फेस कर रहा है, यही फर्स्ट इंडेक्स फिंगर आपकी इसको फेस कर रही है. तो जो पोजिशनिंग है फिंगर्स की आपकी राइट और लेफ्ट दोनों के अंदर, दे आर इंडिकेटिंग दैट दे आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर्स. ये दोनों आइसोमर है, राइट और लेफ्ट हैंड दोनों आप एक दूसरे का आइसोमर है. दे आर मिरर इमेज, दे आर मिरर इमेज. बट व्हेन यू आर गोइंग टू सुपर इम्पोज, आप अपने राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड को रखोगे तो आपका जो ये जो थंब है इसको, यानी कि राइट हैंड के ऊपर अपने लेफ्ट हैंड को रखोगे तो आपका जो थंब है वो आपके लास्ट वाली फिंगर के ऊपर जा रहा होगा और फर्स्ट फिंगर आपकी फोर्थ वाली फिंगर के ऊपर जा रही होगी. व्हेन यू आर ओवरलैपिंग योर हैंड टू ईच अदर, एंड यू कैन easily differentiate that there is a chirality both our end are the isomers of each other. But when I'm going to superimpose or superpose both the hand on each other, they are not superimposable to each other. और मैं अपने राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड को रखूँ या लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को रखूँ तो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे. यानी कि आपका जो फर्स्ट थंब है आपका लास्ट फिंगर के ऊपर सुपर इम्पोज होगा और आपकी जो सेकंड फिंगर है वो आपकी फोर्थ वाली फिंगर के ऊपर सुपर इम्पोज होगी. दैट बेसिकली इंडिकेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पायरिटी. ओके. सो हैंडीनेस द रूल और राइट हैंड ग्लव डज नॉट फिट द लेफ्ट हैंड. यानी कि इसके मिसाल यही है कि अगर आप सीधे हाथ का दस्ताना उल्टे हाथ में पहने तो सीधे हाथ का दस्ताना सीधे हाथ में ही जाएगा और लेफ्ट हैंड का जो ग्लव है वो लेफ्ट हैंड के अंदर ही फिट होगा. ठीक है. सो एन ऑब्जेक्ट इज कायरल इफ it is mirror image is different from the original object. ठीक है. इसका mirror image जो है original image an object is chiral if its mirror image is different from the original object. अब इसको हम बॉल एंड स्टिक मॉडल से समझ लेते हैं. 3D स्पेस के अंदर ये बॉल एंड स्टिक मॉडल आपके पास दिया गया है. बीच में आपके पास मिरर है. ठीक है. कार्बन के ऊपर स्टेरिक दिला है. दैट इंडिकेट्स ये कार्बन आपका क्या है, कायरल कार्बन है या स्टीरियो सेंटर है. ठीक है. इसी तरीके से इसकी 4 अटैचमेंट है, 1 2 3 एंड 4. इसका मिरर इमेज का शो कर रहा है कि 4 वाला 4 के सामने आए, थर्ड वाला थर्ड के सामने आ रहा है, फर्स्ट के सामने आ रहा है और सेकंड जो है पीछे की तरफ है. ठीक है. तो बोथ द मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. ठीक है. बिकॉज they have a stereocenter, they have a chiral carbon. ओके. तो इसका एक ही स्टीरियोसेंटर मौजूद था तो इसका एक ही आइसोमर बना. ठीक है. इसके अंदर एक कार्बन जो था वो स्टीरियो कार्बन था तो उसका आइसोमर भी एक ही बना. अगर इसके अंदर एक से ज़्यादा स्टीरियोसेंटर होते तो पॉसिबल आइसोमर्स भी ज़्यादा होते. ठीक है. तो अगर हम इसको पूरे मॉलिक्यूल को दूसरे के ऊपर रख के देखें, सुपर इम्पोज करके देखें तो दे आर नॉट सुपर इम्पोज टू ईच अदर. ठीक है. चाहे मैं इसको 360 रोटेट भी कर लूँ, चाहे मैं इसको इस मॉलिक्यूल को जो मिरर इमेज है इसको 360 रोटेट भी कर लूँ तो क्या होगा, रोटेट करने में के नतीजे में क्या होगा, ये 2 पीछे चला जाएगा, 4 इस तरफ आ जाएगा. ठीक है. 3 4 की जगह चला जाएगा और 4 3 की जगह आ जाएगा. तो तब भी क्या होगा, जब मैं सुपर इम्पोज करूँगा तो क्या होगा, दूसरे के सेम नंबर के ऊपर यानी सेम ग्रुप के ऊपर इम्पोज नहीं होगा. मिरर इमेज तो हैं दूसरे के, पर दे आर नॉट सुपर इम्पोज टू ईच अदर. That is the concept in chiral carbon or stereoisomers or enantiomers. They are mirror image of each other. They have a stereocenter.
they have same molecular formula, but they are not superimposable to each other. So also called asymmetric carbon, also called chiral carbon. If there is symmetry in the molecule, तो कार्बन आपके पास कहते हैं एसिमेट्रिक नहीं, कार्बन जो है कायल कार्बन के अंदर एसिमेट्री होती है। ठीक है, एसिमेट्री वाले कॉन्सेप्ट हम आगे भी समझ लेंगे। तो कायल कार्बन और स्टीरियो कार्बन और स्टीरियो सेंटर टाइप ऑफ कार्बन, दे आर आल्सो नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन। इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती। अगर इसको हाफ से ब्रेक करोगे तो, अगर मैं इसको आधा ब्रेक करूँ यहाँ से, तो ये पोर्शन अलग है, लेफ्ट पोर्शन अलग है और राइट पोर्शन अलग है। तो मैं इसको हाफ डिवाइड करूँ, चाहे मैं इसको यूँ डिवाइड करूँ या यूँ डिवाइड करूँ, तो उसका एसिमेट्रिक कार्बन मतलब इसको कहीं सी पॉइंट से भी ब्रेक करूँगा, मैं स्प्लिट करूँगा, दो हाफ्स के अंदर ये इक्वली स्प्लिट नहीं होगा, डिफरेंट पोर्शन के अंदर ये स्प्लिट होगा। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट। सो कार्बन एटम दैट इज बॉन्डेड टू फोर डिफरेंट ग्रुप्स इज chiral। अब हम देखते हैं एक chiral क्या है। मिरर इमेजेस दैट कैन बी सुपरपोज या सुपर इम्पोज। सुपरपोज मीन्स या सुपर इम्पोज कह लें, superimposed on each other, they are considered as achiral, they are not chiral molecules। सही है। इसकी सिंपल एग्जांपल है आपके पास चेयर की। ठीक है, और हम देखें चेयर को, तो चेयर के चारों जो कहते हैं फुट्स हैं, तो जो पैडल्स हैं, चारों की जो सेम हाइट है और सेम साइज और सेम शक्ल भी है, इसका मिरर इमेज भी सेम ही होगा। अब मैं इस चेयर को उठा के इसके ऊपर रखूँगा तो ये इजीली इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी। ठीक है, सो देयर इज नो स्टीरियो सेंटर, देयर इज नो chiral carbon, there is no chirality to the molecule। So if there is no chirality or no chiral carbon or no stereo center, then they are considered as a achiral, or they are the image or the isomer which is generated are not superimposed to each other because they have achiral, they have the structure has achirality in its structural form। सो एक अगर इसकी हम बॉन्ड्स की फॉर्म में इसकी एग्जांपल लें, तो एक आयल कंपाउंड्स की हम इसका 3D मॉडल देखें, तो 3D मॉडल के अंदर इस कार्बन के ऊपर डायरेक्ट नहीं बना हुआ। क्यों? इस क्योंकि ये कार्बन जो है आपके पास स्टीरियो सेंटर नहीं है, स्टीरियो कार्बन नहीं है। इसके चार हाथ हैं, एक हाथ को वन का, दूसरे को टू, और थर्ड और फोर्थ हैंड को हमें थ्री कह दिया। तो दो बॉन्डिंग्स जो हैं, जो दो एटम्स हैं वो सेम है। अगर मैं इसका मिरर इमेज देखूँ तो इसका मिरर इमेज भी ऐसे ही बनना है। थ्री के सामने थ्री आ रहा है, थ्री के सामने थ्री आ रहा है, वन के सामने वन है, और टू इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अगर मैं इसको रोटेट करके मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट करूँ 360 या 180, तो 180 रोटेट करने के बाद इसके ऊपर सुपर इम्पोज करूँगा तो क्या होगा, ये एज इट इज जो है वो क्या होगा, टू मैं रोटेट किया इसको, तो रोटेट करने के बाद इसकी शक्ल क्या हुई, ऐसे बन गई। तो मैं इस मॉलिक्यूल के इसके ऊपर उठा के रखूँगा तो क्या होगा, वन वन के ऊपर जाएगा, टू टू के ऊपर जाएगा, और थ्री थ्री दोनों दूसरे के ऊपर जाएंगे। दे हैव द सेम स्ट्रक्चरल फिट। ठीक है, तो क्या होगा, एक कार्बन का 1 2 3, ठीक है, इसके ऊपर एक और इमेज को उसको रखूँगा तो यही वन वन के ऊपर जाएगा, टू टू के ऊपर जाएगा, थ्री थ्री के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये सुपर इम्पोज होंगे, सुपर इम्पोज होंगे to each other because there is no chirality to the molecule। So take this mirror image, try to superimpose it one on each other। The left side or right side both will be superimposed to each other। Everything will be easily matched to each other because the structure or the isomer or the image of the isomers are superposed or superimposed on the base of achirality to the molecule। Acyl compounds have superimposable mirror images। If there is achirality, there must be superimposability। The superimposable image होंगे, superimposable आपके पास जो isomers होंगे उनका जो concept है वो relate करा होगा achirality से। ठीक है, they are superimposed to each other, the isomers are superimposed to each other। While if there is chirality to the molecule, the images will be formed,
they are, or the isomers will be formed, they are non-superimposable to each other. इसकी एग्जांपल लें यहाँ पे, तो लेट्स सपोज देयर आर टू डिफरेंट एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 2 है. फर्स्ट एग्जांपल के अंदर आप देखो, तो ये कार्बन पहले हम सिलेक्ट करेंगे. कार्बन कौन सा स्टीरियो कार्बन है? कार्बन के चारों हाथ डिफरेंट है, एक पे मिथाइल है, एक पे इथाइल है, एक पे एच है, एक पे ब्रोमीन है. ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये स्टीरियो सेंटर कहलाएगा, इसे कायरल कार्बन कहलाएगा. ठीक, इसका मिरर इमेज देखोगे, तो मिरर इमेज भी आप देखो, एच एच के सामने, सी एच के सामने, बी आर के सामने, और इथाइल इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. इफ़ यू ट्राई टू सुपर इम्पोज द मॉलिक्यूल, इसी को उठा के इसको ऊपर रखोगे, तो क्या होगा, ये एच और सी एच थ्री इस तरफ आएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, सी टू एच थ्री, सी टू सी एच टू सी एच थ्री. ठीक है, तो कुछ एक पोर्शन ऐसे होगा जो कि कार्बन का एक बॉन्डिंग ऐसी होगी, जो एक से दो बॉन्डिंग ऐसी होगी जो कि उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रही होगी. So because there is a chirality to the molecule, the mirror image or the isomer is non-superimposable to each other. Similarly, both the molecules are identical. The second example. अब इसमें से फ़र्क क्या है कि इसके पास पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कार्बन के दो हाथ के ऊपर जो है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो देयर इज़ नो स्टीरियो सेंटर. पहली चीज़, तो कार्बन जो है आपके पास कायरल कार्बन नहीं है. ये एक कायरल है आपके पास, और ये आपके पास कायरल है. तो इसका मिरर इमेज जो फॉर्म होगा वो सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर होगा. ठीक है, इसी तरीके से आप सी कॉरल्स की एग्जांपल लें, नेचर के अंदर आपके पास मुख्तलिफ एग्जांपल नजर आएंगी. जैसे कॉरल्स की एग्जांपल लें, तो आपके पास सी कॉरल्स, दे आर द मिरर इमेज टू ईच अदर, बट दे आर, अगर इसके ऊपर सुपर इम्पोज करोगे तो दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर. इसी तरीके से अगर इस पिक्चर के अंदर आप देखो, तो इस पिक्चर के अंदर ये पहाड़ और दरख्त हैं, एक झील किनारे, इसका मिरर इमेज बनना है, इसका आइसोमेरिक इमेज बनना है. तो अगर आप इसको देखो, इस हाफ इमेज को देखो, तो ये आपका इसका मिरर इमेज है. ठीक है, मिरर इमेज है इसका, विच इज़ फॉर्म इन द वाटर. तो अगर इसी पोर्शन को सुपर इम्पोज करो ऊपर वाले पोर्शन से, तो इसकी जो पीक, यहाँ पे पीक आ रही है, सुपर इम्पोज करोगे तो इसकी इस वाले इमेज को ऊपर लेके आओगे, तो पीक क्या होगी, इस इमेज की पीक नीचे की तरफ आएगी, और जो बेस है इसका वो पीक की ऊपर तरफ चला जाएगा. तो इन नेचर यू कैन ईजली identify there are different shapes or different things available in the nature, which indicates, or which speaks that nature is unanimous, nature is unique, नेचर इज़ प्योर. और अल्लाह ताला ने जो इल्म आपको सिखाया, हमें सिखाया है, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त इल्म है. तो यू कैन सी दैट दिस इज़ द नेचर विच टेल्स यू एवरीथिंग. कि आप जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है, ट्रू फॉर्म के अंदर. आपकी बॉडी के पार्ट्स, आपका अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन, आपकी दोनों आँखें, आपके हाथ की इम्प्रेशंस, सो दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द नेचर. तो इसी तरीके से गैलेक्सी के अंदर, इस पिक्चर के अंदर गैलेक्सी शो किए गए हैं, इसके अंदर डिफरेंट स्टार्स हैं. हो सकता है बहुत सारे स्टार्स रिजेंबल करते हों, और दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर. So everything has a pair and a number of pairs of a single thing, which is based on the chirality to the molecule. So अब हम बात करते हैं स्टीरियोआइसोमर्स की टाइप्स की. तो this slide you can see that there is a terminology which is enantiomers. स्टीरियोआइसोमर्स के अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, एनांशियोमर्स, मेसोमर्स और डायस्टीरियोमर्स. ठीक है, एनांशियोमर्स क्या होते हैं? एनांशियोमर्स आर दोज कंपाउंड्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. ठीक है, वो कंपाउंड्स जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल हों और दे आर मिरर इमेजेस, इनका जो मिरर इमेज हो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो. ये नॉन सुपर इम्पोजेबल प्रॉपर्टी कब आएगी? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर दिस नॉन सुपर इम्पोजेबल प्रॉपर्टी विल कम or will be based on chiral carbon. ठीक है, any molecule that has chiral or chirality or stereocenter, they will uh, as per the Van Hoff's rule, they will form different type of isomers. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास enantiomer explain कर रहा है. enantiomer का phenomena है that the compound are non superimposable images, they have a chiral carbon.
So the structure indicates that this कार्बन दिस ये आपके पास जो एक बॉलिस्टिक मॉडल दिया गया है और एक आपके पास सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर दिया गया है, सॉरी स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर दिया गया है 3D स्पेस के अंदर। ये बॉलिस्टिक मॉडल आप हम यूज़ करते हैं बेसिकली कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के अंदर हम यूज़ करते हैं इसको, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के अंदर बॉलिस्टिक मॉडल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो ये जो नीचे वाली एग्जांपल है सेम ही है इस बॉलिस्टिक मॉडल के। अब आप देखें ये ब्राउन जो है वो ब्रोमीन को शो कर रहा है। ठीक है, ये स्टेरिक है कार्बन को शो कर रहा है। ये पीछे जो ग्रे है आपके पास हाइड्रोजन को शो कर रहा है। और ये आपके पास कार्बन एच 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 ये मिथाइल ग्रुप को शो कर रहा है। इस तरीके से कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है इसके, ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन इसके। तो उसका मिरर इमेज भी कुछ इस तरह से बनना है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्म है आपके पास 3D स्पेस के अंदर, इस बॉल स्टिक को 3D स्पेस को 2D स्पेस के अंदर डिपिक्ट करने के लिए आपके पास केमिस्ट्री के अंदर कुछ बॉन्ड्स की आइडेंटिफिकेशन दी गई है। ये बॉल स्टिक मॉडल है आपके पास 3D स्पेस दिखा रहा है। ठीक है, हम जो इस 3D स्पेस को 2D स्पेस के अंदर भी रीड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। ठीक, ये सॉलिड वेज जो आपके पास है, सॉलिड इसको हम सॉलिड वेज कहते हैं। और ये डॉटेड लाइंस, ठीक है, दैट इंडिकेट्स द अटैचमेंट ऑफ द ग्रुप। ये कहता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड दैट डॉटेड लाइन इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, और ये सिंपल सिंगल बॉन्ड है कि ऑन द प्लेन, ये प्लेन के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है। ठीक है, ये ब्रोमीन इट इज आउट ऑफ द सरफेस एंड एच इज अवे फ्रॉम द सर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड आउट ऑफ द सरफेस, पीछे की तरफ है। ठीक है, तो पीछे वाली तरफ अगर एच है नज़र नहीं आ रहा उसको इंडिकेट करने के लिए हम इसको डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करेंगे। तो दोनों जो दोनों ये इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज है। तो both the molecules are mirror image or they have a same molecular formula, they have same bromine, same hydrogen, same methyl group, but the orientation in 3D space is different, that indicates the enantiomer example। ठीक है, 3D space के अंदर इसकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। they are non superimposable to each other because they have a chiral carbon। तो इसकी आसान एग्जांपल और इस तरह से भी ले सकते हो कि आप रोज़ाना अपने आप को सुबह या दिन में किसी भी वक्त शीशे के आगे खड़े होकर देखते हो। ठीक है, you can see your isomer, you can see your enantiomer। ठीक है, because when you see look at your face on in the mirror and your whole body in the mirror, you can see or differentiate that there is a image in the mirror जो कि आप ही से रिजेंबल करता है, वो आप ही का आइसोमर है। ठीक है, बट आइसोमर की कौन सी टाइप है, वो एनेंशियोमर कहलाएगी। ठीक है, आपके हाथ की 5 उंगलियां नज़र आएंगी। ठीक है, आपका फेस ही नज़र आएगा। ठीक है, आपके लेग्स ही नज़र आएंगे। बट द डिफरेंस इज दैट द द orientation or the arrangement of the body parts in the mirror is in 3D space is different। No, it's not different, both are same, but if you superimpose your original image to the mirror image which is formed in the mirror, they are non superimposable to each other। ये ऐसे ही लिखा हुआ है कि हाई एन एंस्ट्रोमर। ठीक है, you are watching yourself in the mirror and there is another mirror which will reply you hi enantiomer। you can see hi enantiomer is in opposite form। ठीक है, ये उल्टा बना हुआ है। ठीक है, दे आर नॉन सुपर इम्पोज, दैट इंडिकेट्स कि हम दोनों को मिलाएं तो दे आर नॉन सुपर इम्पोज टू ईच अदर। इस तरीके से एक हाथ के अंदर आपके पास येलो बैंड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड है, सही है। तो ये मिरर के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा होगा, ये राइट नज़र आ रहा होगा, और आपका राइट हैंड जो मिरर के अंदर है वो लेफ्ट हैंड नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो दो बोथ आर नॉन सुपर, अगर आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करो तो दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर। योर whole body, the mirror image of your body is non superimposable to your original body। So the isomers that are non superimposable mirror images to each other, they refers a relationship between the pair of objects। They have a same physical and chemical properties except they are differentiating only in the optical activity। The optical activity क्या होती है? That optical activity is basically explains the plane polarized light। When the molecule exposed by the plane polarized light, it will deflect the plane polarized to plus or minus। We will discuss this plus or minus with respect to the texture and laboratory।
So the if there is an optical activity of the molecule, they have a tendency to rotate the plane polarized light. They are optically active molecules. Okay. So there is another terminology which you can see that uh, जो एनेंशियोमर्स होते हैं उनके अंदर जिनके अंदर कायरलिटी पाई जाती है, तो अगर उस किसी मॉलिक्यूल को हम उसको किसी भी पॉइंट से ब्रेक करें तो उसका एक पोर्शन जो है वो दूसरे पोर्शन से इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि उसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, वो एसिमेट्रिकल कहलाएगा। ठीक है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मीन्स कि अगर मैं उसको बीच में से स्प्लिट करूं तो उसका एक पोर्शन जो है वो दूसरे पोर्शन, अपर पोर्शन जो है लोअर पोर्शन से दोनों बराबर हों। ठीक है, मैं एग्जांपल अभी दे दूंगा आपको। अगर आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो एक स्ट्रक्चर है, एक इस एंगल से दिखाया जा रहा है। इसको अगर मैं इसको चेंज करके देखूँ और इसको बीच में से स्प्लिट करूँ तो ये इसका एक साइड पे 3 है, दूसरी साइड पे भी 3 है। तो अपर और लोअर पोर्शन दोनों जो हैं वो बराबर हैं, यानी कि ये साइड और ये साइड दोनों जो हैं बराबर हैं। सो देयर इज अ प्लेन, यानी कि प्लेन, जिस प्लेन से मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ तो अपर और लोअर पोर्शन बोथ आर सेम। तो दैट इंडिकेट्स द सिमेट्री। सिमेट्री यानी कि सिमिलैरिटी पाई जाती है अपर और लोअर पोर्शन के अंदर। ठीक है, a molecule that has a planar symmetry which is considered this will be considered as achiral. ठीक है, this type of concept is considered in symmetry, यानी plane जिस molecule अंदर plane of symmetry होगी या achirality होगी तो वो उसके अंदर आपके पास plane of symmetry पाई जाएगी। ठीक है, जिस molecule के अंदर आपके पास plane of symmetry है, इसका मतलब उसके अंदर कार्बन जो है वो achiral कार्बन है। ठीक है, उसका जो कार्बन है उसका कोई से भी दो हाथ जो है वो सेम होंगे। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री या पॉइंट ऑफ सिमेट्री, किसी भी पॉइंट ऑफ सिमेट्री कहूँ या प्लेन ऑफ सिमेट्री कहूँ, किसी भी पॉइंट से उसको मैं ब्रेक करूँ तो उसका पोर्शन जो है वो इक्वली स्प्लिट हो जाए। ठीक है, इस तरीके से एग्जांपल दी गई है, एक क्यूब की एग्जांपल दी गई है, इसके पोर्शंस हैं, अगर आप उसको स्प्लिट करें तो स्क्वायर के अंदर हर पोर्शन एक दूसरे के इक्वलेंट होगा। इस तरीके सर्कल है आपके पास, मैं सर्कल को स्प्लिट करूँ मिड से तो आपके पास इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। और पॉइंट ऑफ सिमेट्री मतलब इसको मैं ए से स्प्लिट करूँ तो चारों पोर्शन जो है इक्वली ब्रेक हों और चारों के चारों पोर्शन सेम हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री या पॉइंट ऑफ सिमेट्री, किसी भी पॉइंट से स्प्लिट करूँ या किसी मैं प्लेन के ऊपर उसको ब्रेक करूँ तो उसका अपर और लोअर पोर्शन जो है वो इक्वलेंट कहलाए। ठीक है, इसी तरीके से एग्जांपल दी गई है कि ब्रोमीन और क्लोरीन लगा हुआ है और इसके अंदर दो एच हैं। अगर मैं इसको, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री को इंडिकेट करता है। तो अपर और लोअर हाइड्रोजन दोनों सेम है तो ये इसके अंदर कायरलिटी क्या है, नहीं है, ये ए कायरल कहलाएगा। ठीक है, या सेंटर ऑफ सिमेट्री हम किसी कहते हैं सर्कल को या किसी भी स्क्वायर को मैं सेंटर पॉइंट से स्प्लिट करूँ तो उसका अगर यहाँ से स्प्लिट करूँ तो उसका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ठीक है, अगर इसको मैं इस पॉइंट से स्प्लिट कर रहा हूँ तो आपका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है आपका इक्वल है। ठीक है, तो सर्कल में आपके पास जो है वो पॉइंट ऑफ सिमेट्री होती है और किसी भी मॉलिक्यूल को प्लेन के ऊपर होता है उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। A cube has several planes of symmetry and a center of symmetry. ठीक है, ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास एक और एग्जांपल है डायस्टीरियोमर्स। Diastereomers are the stereomers that are not mirror images of each other. They are not mirror images of each other, but they have two or more stereo centers in the molecule. Okay, those molecules which are have which are not mirror images of each other, but they have two or more stereo centers in the molecules. They are considered as a diastereomers. डायस्ट्रीमर्स की वो एग्जांपल है जिसके अंदर कायरल ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं और एक कायरल ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं। बट एनेंशियोमर्स वो वाहिद एग्जांपल है आइसोमर्स की या स्टीरियो आइसोमर्स की जिसके अंदर सिर्फ कायरल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो डायस्ट्रीमर्स के अंदर कायरल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और एक कायरल दोनों ऑब्जेक्ट्स, यानी कायरल कार्बन भी हो सकता है और एक कायरल, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, so that is a differentiating point that differentiate the diastereomers from the enantiomers, that they have different physical and chemical properties, while enantiomers have same physical and chemical properties. If you look at the example that uh, this amphitrine,
इस फॉर्म के अंदर आपके पास क्या है, ये एनांशियोमेरिक पेयर है, ये एनांशियोमेरिक पेयर है, ठीक है। और इसी एफिड्रीन को मैं इसका एक और आइसोमर बनाऊं, तो आपके पास ये स्यूडो एफिड्रीन देखो जो इसका आइसोमर है। तो स्यूडो एफिड्रीन के अंदर आपके पास सिंपल क्या आपके पास स्पेस के अंदर इसकी 3D ओरिएंटेशन फर्क कर रही है, ठीक है। तो ये आपके पास एक और मिरर इमेज बनना है, बिकॉज दे आर मल्टीप्लेट, दे आर टू स्टीरियो सेंटर। इसमें एक ये स्टीरियो सेंटर है और दूसरा ये स्टीरियो सेंटर है, तो दो स्टीरियो सेंटर हैं, दोनों के ऊपर ओरिएंटेशन चेंज होने के नतीजे में एफ्रोडीन जो है सूडो एफ्रोडीन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो एनांशियोमर्स भी पेयर से बन सकते हैं इसमें, एनांशियोमर और डायस्ट्रोमर्स भी पेयर से बन सकते हैं, ठीक है। So if you compare enantiomers, diastomers with another terminology which is meso compounds, you can see that enantiomers are pair of stereoisomers that are related to each other and they are non-superimposable to each other. They have chirality to the structure, while diastomers they are pair of enantiomers containing more than one chiral carbon and are not mirror image of each other. ठीक है, there is a difference कि ये mirror image नहीं है। पीछे वाले एग्जांपल में और आप देखो, एफ्रिडीन और स्यूडोएफ्रिडीन दे आर नॉट मिरर इमेज, ये मिरर इमेज नहीं है दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, ठीक है। So diastomers they have more than one stereo center but they are not mirror image of each other. Okay, while enantiomers they are mirror image of each other, they are but they are not superimposable to each other. While meso compounds are those compounds which have a planar symmetry. Those compounds which have a planar symmetry, they are considered as a meso compounds. They are stereoisomers that have more than one chiral center and they are superimposable, ठीक है। दे आर सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर। इसके अंदर कायलिटी तो है, पर कायलिटी के साथ साथ इसके अंदर आपके पास क्या है, इसके अंदर प्लेनो सिमेट्री पाई जाती है। तो अगर उसको काम इसकी मिरर इमेज को आप सुपर इम्पोज करोगे ऑन द पॉइंट ऑफ सिमेट्री और द प्लेन ऑफ सिमेट्री, द अपर पोर्शन विल बी सुपर इम्पोज टू द लोअर पोर्शन, ओके। तो एग्जांपल हम इसकी यहाँ पर लें, तो ये एग्जांपल इन सारे कॉन्सेप्ट को जो हम अब तक समझ से आए तो ये आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। आपके पास 4 एग्जांपल दी गई हैं, ठीक है। मैं अभी ऊपर वाले एग्जांपल की बात करता हूँ। तो ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर फर्स्ट एग्जांपल हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। जैसे पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स, ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स एग्जांपल ये इथ्रोस, ठीक है। इथ्रोस के अंदर सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सा स्टीरियो सेंटर मौजूद है, ठीक है। अगर आप देखो तो ये स्टीरियो सेंटर मौजूद है, ये भी स्टीरियो सेंटर मौजूद है, इसको वो ये भी स्टीरियो सेंटर मौजूद है, ये भी स्टीरियो सेंटर मौजूद है। एक चीज़ तो इसके अंदर दो आपके पास क्या है, कायरल कार्बन है, ठीक है। तो अगर आप वेंट ऑफ रूल की तरफ देखो तो इसके पॉसिबल आइसोमर्स क्या बन सकते हैं, अगर इसके अंदर दो स्टीरियो सेंटर होंगे, एन की वैल्यू 2 होगी, तो क्या होगा, इसके पॉसिबल आइसोमर्स कितने बनने हैं, 2 टू द 4, 4 आइसोमर्स बन सकते हैं, चार आइसोमेरिक पेयर्स बन सकते हैं, यानी 4 पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं, यानी कि एक स्ट्रक्चर की 4 मुख्तलिफ शक्लें बन सकती हैं। तो अगर आप इसकी देखो, ये ए बी सी डी, ये 4 पॉसिबल आइसोमर बन रहे हैं, ठीक है। अब 4 आइसोमर इसी एक मॉलिक्यूल एथ्रो से बने हैं, एक इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है चारों का, पर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या है इन चारों की डिफरेंट है। तो 4 पॉसिबल आइसोमर्स बने। तो अगर हम पहले ए बी आइसोमर की बात देखें, बोथ आर मिरर इमेजेस, ये मिरर इमेज हैं, ठीक है, ये जो है मिरर शो कर रहे हैं, बोथ आर मिरर इमेजेस है। OH is facing to OH, OH facing to OH, ठीक है। एल्डिहाइड एल्डिहाइड है, नीचे आपके पास अल्कोहल अल्कोहल है, ठीक है। दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर, they are pair of mirror images, they are known as enantiomers, ठीक है। if you can see that there is no plane of symmetry, अगर मैं इसको 20 से स्प्लिट करता हूँ, आप देखो अपर पोर्शन इस मॉलिक्यूल, अगर मैं ए मॉलिक्यूल की बात करूं, अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन दोनों को अगर मैं देखूं तो दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे अल्कोहल OH OH है, यहाँ पे HH है, पर यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे अल्कोहल है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ अल्कोहल है, तो अपर और लोअर पोर्शन जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से बी आइसोमर के अंदर भी ऐसी है, क्योंकि दोनों आपके पास एनेंशियोमर कहला सकते हैं, मीजोमर्स नहीं कहला सकते, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं COD की एग्जांपल लूँ तो COD बोथ आर मिरर इमेजेस, ये भी मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। अगर इसको देखूँ OH यहाँ पे सामने आ रहा है, इसका HH सामने आ रहा है, ठीक है।
अगर इसको मैं बी से स्प्लिट करूँ तो क्या होगा, अपर और लोअर पोर्शन दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ भी आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो क्या कहलाएगा, ये भी एनेंटियोमर कहलाएगा। ठीक है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब आप आ जाएं, फॉर एग्जांपल लेते हैं। अब हम एक और एग्जांपल ली यहाँ पर, एक और एनेंटियोमेरिक पेयर है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, और आप देखो तो इसमें पहले आपने देखना है कि इसमें स्टीरियो सेंटर काइरल कार्बन कितने, एक काइरल कार्बन ये रहा, इसको स्टेरिक मार्क कर दिया, दूसरा ये रहा, तो कितने पॉसिबल आइसोमर, और चार हो गए, एक दो तीन चार, चार ए बी सी डी, चार आइसोमर हो गए। पहला पेयर और दूसरे पेयर के अंदर फ़र्क है, पहला पेयर जो है वो एनेंटियोमर है, सेकंड पेयर जो है वो मीजो कंपाउंड है। ठीक है, अभी कैसे आप देखें इसको ज़रा, कि अगर हम देखें पहली चीज़ तो ये मिरर इमेज है, ओ एच के सामने, एच एच के सामने, तो मिरर इमेज है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सी और डी को देखें तो ओ एच के सामने, ओ एच के सामने। ठीक है, ये मिरर इमेज है। अब हम इसके देखें प्लेन, अगर बीच से इसको स्प्लिट करें तो क्या है, ऊपर भी क्या है आपके पास सी डबल ओ एच, नीचे भी क्या है आपके पास सी डबल ओ एच। ठीक है, यहाँ भी सी डबल ओ एच है, यहाँ भी सी डबल ओ एच है, और आप देखो कि इसमें क्या है, इसमें अपर वाले हैंड में एक तरफ एच है और एक दूसरी तरफ ओ एच है लोअर पार्ट में। ठीक है, और इस तरीके से अपर अपर पार्ट में ओ एच है, नीचे वाले पार्ट में एच है, तो ये मीज़ो नहीं हो सकते हैं। मीज़ो के लिए दोनों ऊपर की जो नीचे की अटैचमेंट अपर लोअर पार्ट की दोनों सेम होंगी, तो ये मीज़ो नहीं हो सकता, ये एनेंटियोमर हो सकता है। अब इसको समझें सी ओ डी एग्जाम्पल से, कि अगर मैं इसको बी से स्प्लिट करूँ, ये जो ब्राउन है स्प्लिट कर रहा है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, there's a plane of symmetry, अपर पोर्शन का ओ एच और लोअर पोर्शन दोनों से सेम जगह मौजूद है, एच एच सेम जगह मौजूद है, कार्बोक्सिलिक ऊपर भी है नीचे भी मौजूद है। इसी तरीके से इस बी वाले स्ट्रक्चर में भी ऐसी है, तो बोथ सी एंड डी आर मीजो कंपाउंड्स। ठीक है, अब ये क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल से आपके आइसोमर बनाए हैं, तो दो पेयर आपके पास, दो जो आपके पास आइसोमर बने हैं वो एनेंटियोमेरिक पेयर कहला रहे हैं, एज एनेंटियोमेरिक पेयर कहला रहे हैं, और दो जो पेयर बने हैं आपके पास वो मीजो पेयर कहला रहे हैं, मीजो कंपाउंड्स कहला रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रैक्टिसिंग एग्जांपल है आपके पास, ये आप सॉल्व कीजिएगा, वर्किंग एग्जांपल आपके पास, वो सॉल्व करें, इसमें आप बताएं कि कौन से आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो इसमें एनेंटियोमर है, कौन सा मीज़ो है, कौन सा डायस्टीरियो है, और आपने टू एंड वेंट ऑफ रूल के तहत आपने कायरल कार्बन की आइडेंटिफिकेशन करनी है इसके अंदर। ठीक है, that's all from today's lecture. Next lecture we will start with the different nomenclatures, we will discuss the different types, and we'll discuss the remaining portion of the this first lecture, which is based on यूट्रोमर्स डिस्ट्रोमर्स टाइप्स। हम इसको आज के लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।